کیوں نہیں، برتن ہے آپ کے پاس؟ جی ہاں، مجھے جگہ بتا دیجئے، میں لے آؤں گا۔ آپ برتن دے دیں، میں نے کہا اور پھر اکرام کو پانی لینے کے لیے بھیج دیا۔ اگر ضرورت ہو تو کچھ دیر تشریف رکھیے، بڑا بے بس انسان ہوں میں، دل میں شدید گھٹن ہے۔ شیخ صاحب نے کہا تو میں بیٹھ گیا۔ آپ کی اہلیہ کو شاید کچھ تکلیف ہے، میں نے کہا۔ جی ہاں، دورے پڑتے ہیں، کیا کیا علاج نہ کرا لیا، مگر ان کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے۔ اس درگاہ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، شاید یہیں سے شفا مل جائے۔ ان دوروں کی نوعیت کچھ پتہ چل سکتی ہے مجھے؟ میں نے کہا۔ نوعیت؟ شیخ صاحب کے لہجے میں کچھ گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ اسی وقت پیچھے سے آواز سنائی دی، سن، اگر کچھ بتانا ہے تو سچ سچ بتائیو، ورنہ زبان بند رکھیو، جھوٹ بولے گا تو اور مصیبت میں پڑ جائے گا۔ ساری دنیا کے سامنے جھوٹ بول کر تو گزارا کر لیا تو نے، اب یہاں بابا کے دربار میں جھوٹ مت بولیو، نہیں تو زبان بند رکھ۔ یہ کون صاحب ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرے والد ہیں، مگر ٹھیک کہہ رہے ہیں میاں صاحب، ہم نے گناہ کیا ہے، سزا تو کاٹنی ہی ہوگی۔ شیخ صاحب ٹھنڈی سانس لے کر بولے۔ اسی وقت اکرام پانی لے آیا جسے شیخ صاحب کے والد نے لے لیا۔ شیخ صاحب بولے، پہلا گناہ گار تو میں ہی ہوں، میں نے بے لوث محبت کرنے والوں کی محبت کو ٹھکرا دیا۔ بچپن میں میری والدہ مر گئی تھی، والد صاحب نے مجھے میرے ننیال سے دور کر لیا۔ 12 سال کے بعد مجھے اپنے ننیالی خاندان کا پتہ چلا تو میں ان سے ملا۔ محبت کرنے والی بوڑھی نانی، ماموں اور خالہ نے مجھے سینے سے لگا لیا، مجھے اپنی اولاد کی طرح چاہا، ماموں نے مجھے بیٹوں کی طرح سمجھا، نانی نے اپنی اولاد کی نشانی سمجھ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ 11 سال تک میں ان کے ساتھ رہا اور میرے ماموزاد، بہن بھائی، نانی اور تمام لوگ مجھے اپنا سمجھتے رہے۔ پھر انہوں نے میری شادی کر دی، بیوی نے مجھے زندگی کا نیا دور دیا اور سب سے پہلے میں ان پیار کرنے والوں سے دور ہو گیا۔ میں نے ان سے اجتناب برتا اور انہیں اپنی محبت سے بے دخل کر دیا۔ میں ان سے بس ایک شناسہ کی طرح ملنے لگا، اپنی بیوی اور اس کے خاندان کو ہی میں نے اپنا سمجھ لیا، اور جو میری ماں کی نشانی تھے دل محسوس کر رہ گئے۔ شاید اسی عمل کا رد عمل تھا کہ قدرت نے مجھے اولاد سے محروم رکھا۔ بوڑھی نانی میرے لیے اجنبی کی حیثیت رکھتی تھی، مجھے کسی سے الفت نہ رہی تھی۔ اولاد کی محرومی میرے اور میری بیوی کے لیے بہت بڑا دکھ تھی۔ علاج معالجے ہوئے، ہر طرح کے جتن ہوئے، مگر ہمارے یہاں اولاد نہیں ہوئی۔ پھر ہماری ملاقات کچھ ایسے لوگوں سے ہوئی جو گندے علوم سے واقفیت رکھتے تھے۔ میری بیوی نے ان سے رابطہ قائم کر لیا اور اولاد کے حصول کے لیے کالے جادو کا سہارا لیا۔ کالے جادو کے ایک ماہر نے اسے بتایا کہ اولاد حاصل کرنے کے لیے اسے ایک جان کی قربانی دینی ہوگی، ایک 11 سالہ بچہ درکار ہوگا جسے قتل کر کے اس پر کالا علم کرنا ہوگا۔ اس جادوگر نے بچے کے حصول کا طریقہ بتاتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ ایسے کام کرتے ہیں، انہیں معاوضہ دے کر کسی بچے کو اغوا کرایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ میری بیوی نے یہ کام اس شخص کو سونپ دیا اور اغوا کرنے والوں کا معاوضہ ادا کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد کالے علم کے ماہر نے اسے انسانی گوشت کے کچھ ٹکڑے دے کر کہا کہ انہیں مٹی کی ہانڈی میں چڑھا کر چولہے پر پکاتی رہے، اور جب یہ ہانڈی میں راکھ کی شکل اختیار کر جائیں تو ایک مخصوص طریقے سے وہ اس راکھ کو استعمال کرے۔ میری بیوی کالے علم کے اس ماہر کی ہدایات پر عمل کرتی رہی اور پھر ہم ایک بیٹے کے ماں باپ بن گئے۔ ہماری خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا، بچے کی خوشی میں ہم دیوانے ہو گئے اور ہم اس کی صورت دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ بچہ 3 سال کا ہو گیا، وہ باتیں کرنے لگا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میری بیوی اب کچھ خوف زدہ سی رہنے لگی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑنے لگا تھا، کبھی وہ راتوں کو جاگ جاتی تھی، وہ سہم سہم کر بچے سے دور ہٹ جاتی، اکثر وہ خوف بھری نظروں سے بچے کو دیکھنے لگتی تھی۔ میں نے کئی بار یہ بات محسوس کی اور ایک دن اس سے پوچھ بیٹھا کہ تم کچھ عجیب سی نہیں ہوتی جا رہی؟ کیسی؟ اس نے پوچھا۔ بظاہر تم بیمار نہیں ہو، لیکن رنگ پھیکا پڑ گیا ہے، چہرہ اتر گیا ہے، کچھ عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے تمہاری۔ کوئی بات نہیں ہے، مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو تم؟ نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ نہ بتاؤ۔ وہ دوسری بات ہے، لیکن کچھ ضرور۔ آپ سے کہوں گی تو آپ یقین نہیں کریں گے۔ کوشش کروں گا، میں نے کہا، اور وہ کسی سوچ میں ڈوب گئی اور پھر بولی، آپ نے کبھی کوئی خاص بات محسوس کی ہے؟ کس سلسلے میں؟ اپنے بیٹے کے سلسلے میں؟ کیسی خاص بات؟ دوسرے بچوں کو آپ دیکھتے ہیں، خاص طور سے اس عمر میں بچے ماں باپ پر جان دیتے ہیں، ماں ان کی تمام محبتوں کا محور ہوتی ہے، وہ ماں کے سینے سے چمٹ کر سکون پاتے ہیں، ماں کی آغوش میں انہیں کائنات مل جاتی ہے۔ لیکن ہمارا بچہ، ہمارا شانی، ہاں آگے کہو۔ بات آج کی نہیں ہے، 3 سال کا ہو گیا ہے وہ،
मगर कभी वो मेरे सीने से नहीं लगा। वो मुझसे घबराता है। अब गौर करती हूँ तो ये पूरे 3 साल मेरी आंखों में घूम जाते हैं। झूले में वो पुरसकून रहता है, मैं गोद में लेती हूँ तो रोने लगता है और खामोश नहीं होता। ऐसे तासुरात होते हैं उसके चेहरे पर कि मैं बता नहीं सकती। यूं लगता है जैसे वो मुझसे नफरत करता है, मुझसे उलझता है, मेरी गोद में नहीं आना चाहता। मुझे एहसास तो होता था लेकिन मैं तवज्जो नहीं देती थी, गौर नहीं करती थी। मगर अब तो मेरी बीवी कहकर ये रोने लगी। अजीब बेवकूफ़ औरत हो, ये कोई अकल की बात है, मैंने गुस्सीले लहजे में कहा। आप नहीं समझ सकते मेरी कैफियत, नहीं समझ सकते आप। रात को वो मेरे पास सोता है मगर कभी मुझसे लिपटता नहीं। मैं उसे कहती हूँ तो वो रोने लगता है, मुझसे दूर हट जाता है। एक रात मेरी आंख खुल गई तो मैंने उसे मोहब्बत से देखा, मगर क्या, वो जाग रहा था, मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में नफरत की चिंगारियां सुलग रही थीं। वो शदीद नफरत से मुझे देख रहा था। मैंने उसे आवाज़ दी तो उसने करवट बदल ली। और अब अक्सर ऐसा ही होता है, मैं रातों को उससे डर जाती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पागलपन की बातें कर रही हो? अपने बच्चे के बारे में तुम ऐसा सोच रही हो? मैं क्या करूं? इतना खुद को समझाती हूँ मगर न जाने क्यों ये सब कुछ दिमाग में आता रहता है। आप खुद देखते हैं, वो सबसे बोलता है, सबसे बातें करता है, मगर हमसे कितना कम बोलता है वो। बस अब इस पागलपन के ख्याल को दिल से निकाल दो। 12 साल के बाद हमारी मुराद पूरी हुई है और तुम। वो खामोश हो गई। मगर मियाँ साहब, उस दिन से मैंने भी अपने बेटे की हरकत को नोट करना शुरू कर दी। मुझे एहसास हुआ कि मेरी बीवी सच कहती है। शानी ऐसा ही था। वो किसी बात पर हंस रहा होता तो हमें देखकर खामोश हो जाता। वो यकीनन हमें नापसंद करता था। बड़ी अजीब बात थी, नाकाबिले यकीन और नाकाबिले समझ। उसे स्कूल में दाखिल करा दिया गया। वो बज़ाहिर नॉर्मल था, बस हमारे साथ उसका रवैया ऐसा था। 5 साल का हो गया वो। मेरी बीवी बदस्तूर इसी कैफियत का शिकार थी। कोई 1 साल पहले की बात है, मेरे एक दोस्त की बहन की शादी थी। अंदरूने मुल्क के एक दही इलाके में रहते थे उसके वालिदैन। मेरा दोस्त शहर में मुलाजमत करता है। उसने बहुत पीछे पड़कर मुझे और मेरी बीवी को बहन की शादी में शिरकत के लिए आमादा कर लिया। हम वहाँ पहुँच गए। मैंने सोचा था कि अच्छा है, मेरी बीवी बहल जाएगी। हम वहाँ जाकर खुश हुए थे। हमारा बेटा भी हमारे साथ था। वो वहाँ बच्चों में घुल मिल गया था। शादी के हंगामे हो रहे थे। एक दिन 14-15 साल की एक हिंदू लड़की मेरे बेटे के साथ आ गई और वो उसे घर छोड़ने आई थी। ये कौन है? मैंने अपने दोस्त से पूछा। जमुना दास की बेटी है। जमुना दास पीछे रहते हैं हमारे, मेरे दोस्त ने जवाब दिया। भगोती हमारे घर था चाचा, आप कहो तो हम इसे साथ ले जावें, रात को पहुंचा देंगे, लड़की ने कहा। कौन भगोती? मेरे दोस्त ने हैरत से पूछा। ये और कौन? लड़की बोली। दिमाग खराब है तुम्हारा, ये तो मेरा भतीजा है, शानी है इसका नाम। तो हम कब मना कर रहे हैं चाचा, ले जाएं इसे साथ, लड़की बोली। नहीं, जाओ, भाग जाओ यहाँ से, मेरा दोस्त गुस्से से बोला। जाने दो चाचा, मासी सधावती उसे देखकर बहुत खुश हो रही है, जाने दो ना, लड़की जिद करने लगी। नहीं प्रेमा, फिर आ जाएगा, अब तुम जाओ जाओ, शाबाश, ये मेहमान है, यहाँ के रास्ते नहीं जानता। मुझे सारे रास्ते आते हैं, शानी गुस्से से बोला। नहीं बेटे, जिद नहीं करते, जाओ लड़की, फिर आ जाएगा ये तुम्हारे पास, मैंने कहा, और लड़की आजुर्दा होकर वापस चली गई। ये क्या नाम ले रही थी इसका? मैंने कहा। पता नहीं क्या किस्सा है। मेरे दोस्त को घर में अंदर बुला लिया गया था, इसलिए बात खत्म हो गई। मैंने महसूस किया कि शानी का भी मूड खराब हो गया है। उसने किसी से बात नहीं की थी। दूसरा दिन शादी का था। मैं भी अपने दोस्त के साथ तैयारियों में मसरूफ रहा। बारात आने वाली थी। कोई 4 बजे शाम को मेरी बीवी बाहर निकल आई। उसने कहा, शानी ने खाना खाया, सुबह से खेलता फिर रहा है, कहाँ है वो? क्या? मैं उछल पड़ा। मैंने खुद उसे सुबह से नहीं देखा था। क्या वो अंदर नहीं है? सुबह से अंदर नहीं आया। ठीक है, आ जाएगा, अभी आता है, मैंने कहा, हालांकि मेरा दिल खुद होल गया था। मैं घबराया हुआ अपने दोस्त के पास गया और उसे ये माजरा सुनाया। वो खुद बेचारा शामियाने वगैरह लगवा रहा था, मगर फौरन ही मेरे साथ भागा। फिक्र मत करो, मिल जाएगा, सब जानते हैं कि वो शादी में आया है, जो उसे देखेगा वो उसे यहाँ पहुँचा देगा। ओ आओ मेरे साथ। मेरे दोस्त को जैसे कुछ याद आया। वो घूमकर पिछले इलाके में आ गया। एक मैदान सा था जिसके दूसरे सिरे पर मकानात नजर आ रहे थे। एक मकान के सामने रुककर मेरे दोस्त ने दरवाजे की जंजीर बजाई और एक आदमी बाहर आया। क्या बात है भैया, सब ठीक तो है ना? कोई ज़रूरत है हमारी? बस तैयार हो जाएं जमुना दास जी, बारात ठीक वक्त पर आ जाएगी। वो कोई बच्चा तो नहीं आया इधर? यहाँ कल प्रेमा के साथ था। भग
जमुना दास कुछ कहते कहते रुक गया। मैं और मेरा दोस्त चौंक कर उसे देखने लगे। वो जल्दी से बोला, प्रेमा के साथ था सुबह से, सिद्धावती के पास बैठा है, मैं बुला कर लाऊं? किसका छोरा है वो? मेरा भतीजा है। भगवान के खेल न्यारे होते हैं, अभी बुला कर लाता हूँ। जमुना दास आगे बढ़ गया। मुझे अंदाजा हो गया था कि जमुना दास भी शानी का नाम भगवती कहते कहते रुक गया है। कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। कोई 3 घर छोड़कर एक बोसीदा से मकान में दाखिल हो गया और कोई 30 सेकंड के बाद शानी को साथ लिए बाहर आ गया। उसके पीछे प्रेमा भी थी और उन तीनों के पीछे एक औरत बाहर निकली। मैली कुचैली साड़ी में मलबूस, बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर वहशत, रंग पीला पड़ा हुआ था। मैंने आगे बढ़कर शानी का कान पकड़ लिया। ये क्या बदतमीजी है, तुम सुबह से गायब हो? शानी ने मुझे एक निगाह देखा, फिर वही नफरत भरा अंदाज उसका, मुंह से कुछ नहीं बोला। मैं उसे लिए आगे बढ़ा तो वो दीवानी औरत भी हमारे पीछे चल पड़ी। जमुना दास ने आगे बढ़कर औरत का बाजू पकड़ लिया। ना सिद्धू, ना, मेहमान है, जाने दे, अपने घर जाएंगे। वो मैली कुचैली औरत ने उंगली शानी की तरफ उठाते हुए कहा। उसके अंदाज में बड़ी बेबसी, प्यार, हसरत थी। मैं अपने दोस्त के साथ शानी को लिए हुए वहां से आगे बढ़ गया। मेरा दोस्त भी खामोश था और मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था। शानी को मैंने अपनी बीवी के पास पहुंचा दिया। वो रास्ता भर कुछ नहीं बोला था, न जिद की थी न मचला था, लेकिन उसके अंदाज से उसकी नफरत का इजहार बदस्तूर हो रहा था, जो उसकी फितरत का एक हिस्सा नजर आती थी। बारात के हंगामे थे और मैं कोई ऐसा अमल नहीं करना चाहता था जिससे यहाँ किसी और किस्म का एहसास पैदा हो। चुनाचे मैंने खामोशी ही इख्तियार किए रखी। जहाँ तक हो सका अपने आप को बारात के सिलसिले में ज़रूरी कामों में मसरूफ़ रखा। अलबत्ता अपनी बीवी को मैंने हिदायत कर दी थी कि शानी को अपनी निगरानी में रखे और बाहर ना निकलने दे, लेकिन मेरा दिमाग तजस्सुस से फटा जा रहा था। कोई बात जो समझ में आ रही हो। बिलाखिर बारात आ गई, निकाह का वक्त करीब आ गया। ये लोग यहाँ के कदीम रहने वाले थे। हिंदू और मुसलमान सभी एक दूसरे दुख सुख में शामिल होते थे। मैंने जमुना दास को देखा, धोती और कुर्ते में मलबूस महफिल में मौजूद था, मेहमानों से गुफ्तगू कर रहा था। दफातन ही मेरे जहन में एक ख्याल आया, क्यों न जमुना दास से इस बात के बारे में बात की जाए, खामोशी से मालूमात हासिल करूं, हो सकता है कि कुछ पता चल जाए। कुर्सियां बिछी हुई थी, सारे काम खुशअस्लूबी से चल रहे थे। चुनाचे मैं जमुना दास के पास जा बैठा। वो मुझे पहचान गया था। मैंने उससे कहा, उस वक्त तो आपसे बात नहीं हो सकी जमुना दास जी। मेरे दोस्त ने बताया कि आप तो इन लोगों के बड़े पुराने पड़ोसी हैं। हाँ भैया जी, जीवन मरण साथ ही रहा है हमारा, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते रहे हैं। बड़े अच्छे लोग हैं ये भी। और फिर बेटी की शादी तो यूं समझो पूरी बस्ती की बेटी की शादी होती है। हमें तो अफसोस है कि हमने शादी में कुछ भी नहीं किया। आप जैसे अच्छे लोग बड़े खुश नसीबों को मिलते हैं। सब लोग तारीफ कर रहे हैं आपकी जमुना दास जी। अरे भैया, हम क्या और हमारी औकात क्या, बस जो खुद अच्छे होते हैं वो दूसरों को भी अच्छा कहते हैं। जमुना दास जी, प्रेमा आपकी बेटी है। मैंने यहाँ से सिलसिला गुफ्तगू का आगाज किया। आप ही की है भैया जी, बड़ी अच्छी बच्ची है। मेरा बेटा तो उससे बहुत मानूस हो गया। वैसे जमुना दास जी, मेरी समझ में एक बात नहीं आई, आपने मेरे बेटे को भगवती कैसे कहकर पुकारा? ये बड़ी अजीब बात नहीं है? वैसे मेरी समझ में कुछ नहीं आया। जमुना दास ने अजीब सी निगाहों से मुझे देखा और फिर बेढंगे अंदाज में हंसने लगा। मुझे इस बारे में बताएंगे नहीं जमुना दास जी? वो भैया जी, बस एक ज़रा सा खेल है भगवान का, कोई क्या कर सकता है। मुझे इस बारे में नहीं बताएंगे जमुना दास जी? अरे हाँ हाँ, काहे ना। वो दरअसल भैया जी तुम्हारा छोरा सिद्धावती के छोरे भगवती दास की शक्ल का है, बिल्कुल वैसा। बेचारी सिद्धावती विधवा थी, बरसों से यहाँ रहती है। उसका पति कारखाने में काम करता था, भट्टी में गिर पड़ा और जीते जी भस्म हो गया। एक ही छोरा था सिद्धावती का, जिसके साथ जीवन बिता रही थी। घरों के काम धंधे करके अपना और अपने बेटे का पेट पाल रही थी कि बेचारे के साथ एक अजीबोगरीब हादसा हो गया। वैसे भी भैया जी, बेचारा भगवती दास हमारा बेटा हमारी बिटिया प्रेमा की उम्र का था। एक ही दिन पैदा हुए थे वो और प्रेमा, और फिर पड़ोसी होने के नाते दोनों ने साथ साथ जीवन शुरू किया और दोनों ही एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करने लगे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि भगवती दास खेतों पर गया हुआ था कि गायब हो गया। फिर भैया वो नहीं मिला। बेचारी सिद्धावती पागल हो गई अपने छोरे के गम में। पुलिस में रपट दर्ज करवाई, आदमियों ने जगह जगह उसे तलाश किया,
पर भगोती दास कहीं नहीं मिला। कोई 5-6 साल पुरानी बात है ये। बस यूं समझ लो कि इसके बाद बेचारे भगोती का कुछ पता ही ना चला। ये तुम्हारा छोरा जो है ना भैया, ये बिल्कुल भगोती की सूरत का है। प्रेमा ही उसे देखकर पागल हो गई थी और भगोती भगोती कहती चढ़ दौड़ी, मगर वो भगोती कहाँ, वो तो 5 साल का होगा ज़्यादा से ज़्यादा, जबकि भगोती अगर होता तो अब 15-16 साल का होता। 11 साल की उम्र में गायब हुआ था वो बेचारा भगोती। भगवान जाने कौन ले गया उसे और कहाँ चला गया। ये है भैया तुम्हारे छोरा को भगोती कहने की कहानी, और ये है बेचारी सिद्धावती के पागलपन की दास्तान। जमुना दास ने बताया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। एक अनोखा खौफ मेरे रगों पैर में जागजी हो गया था। बारात के हंगामे जारी थे, मगर मेरा बदन ठंडे ठंडे पसीने छोड़ रहा था। 5-6 साल पहले भगोती गायब हुआ था। काले जादू के माहिर ने एक 11 साल बच्चे को अगवा की कहानी सुनाई थी, जिसकी कुर्बानी देकर हमारे यहाँ बच्चे की पैदाइश हो सकती थी। हमने उसे रकम अदा की थी और उसने हमारा काम कर दिया था। खुदा की पनाह, शानी भगोती की सूरत था। 5 साल का है वो। 6 साल पहले भगोती अगवा हुआ था। खुदा की पनाह, खुदा की पनाह। वाकयात की कड़ियाँ मिलती जा रही थीं। वो काले जादू का खेल जिसकी बिना पर शानी वजूद में आया, अब अपना असर दिखा रहा था। काला जादू सिर्फ इतना ही नहीं था कि हमारे यहाँ औलाद पैदा हो जाए, उसके असरात अब हम पर नमूदार भी हो रहे थे। शानी हमारा इकलौता बच्चा मन्नतों मुरादों से पैदा होने वाला भगोती की शक्ल का था। मेरे खुदाया, मेरे खुदा, मेरा बदन शदीद दहशत का शिकार था और मैं सोच रहा था कि ये सब कुछ क्या है। क्या भगोती की रूह शानी में हलूल कर गई है या शानी भगोती का नया रूप है? मुसलमान होने की हैसियत से ये सब कुछ मेरा दिल कबूल नहीं करता था, लेकिन जो कुछ था सामने था और मैं इसके बारे में कोई फैसला नहीं कर सकता था। गर्ज ये कि बारात रुखसत हुई, मेहमान चले गए। रस्मी तौर पर मुझे भी विदाई में हिस्सा लेना पड़ा। दोस्त की बहन का मामला था, खुद को अलग कैसे रख सकता था। दूसरे दिन सुबह ही सुबह मेरी बीवी ने वापस चलने की रट लगा दी। हालांकि मेरा दोस्त अभी यहाँ कई दिन कयाम करना चाहता था। ये वादा करके लाया था वो मुझे कि मैं कई दिन तक उसके साथ रहूँगा, शादी के बाद के हंगामों में भी हिस्सा लूँगा, लेकिन अब इसकी गुंजाइश ही कहाँ रह गई थी। मेरा दिल तो इसके बाद खौफ और दहशत का शिकार था। उधर मेरी बीवी भी बुरी तरह वापस चलने की रट लगाए हुए थी। सभी ने उसे समझाया, लेकिन वो ना मानी और बहालत मजबूरी मेरे दोस्त ने भी इजाज़त दे दी। मैं खुद भी वहाँ से भाग जाना चाहता था। जो कुछ भी मुझ पर बीत रही थी मेरा ही दिल जानता था। फिर हम अपने शहर वाले घर वापस आ गए। शानी हमारे साथ था। मेरी बीवी तो उससे खौफजदा रहती ही थी। अब मेरी भी कैफियत उससे मुख्तलिफ नहीं थी। मैं चोर निगाहों से शानी को देखता तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता, एक अजीब सी नफरत रची हुई पाता। शानी हमारे साथ था। मेरी बीवी तो उससे खौफजदा रहती ही थी, लेकिन अब मेरी भी कैफियत उससे मुख्तलिफ नहीं थी। मैं चोर निगाहों से शानी को देखता तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता, एक अजीब सी नफरत रची हुई पाता, जैसे वो हमारे अमल से शदीद नफरत करता हो। फिर एक दिन वहाँ से वापसी के कोई 1 हफ्ते के बाद की बात है। मेरी बीवी ने मुझसे कहा, एक बात कहना चाहती हूँ मैं आपसे। हाँ हाँ कहो, क्या बात है? वहाँ जहाँ हम शादी में गए थे वहाँ मैंने एक अजीब बात सुनी। आपको खुदा का वास्ता इस बात का मजाक ना उड़ाइएगा। मेरी तो हालत ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। कुछ कीजिए और कुछ करना पड़ेगा हमें। समझ में नहीं आता क्या करें। बात क्या है? वहाँ शानी के बारे में तबसरे हो रहे थे। सिद्धावती नामी कोई औरत रहती है वहाँ पर। उसका बच्चा जिसकी उम्र 11 साल थी 5-6 साल पहले वहाँ से अगवा कर लिया गया था। उसका नाम भगोती था और वो बिल्कुल शक्ल में हमारे शानी की सूरत, बिल्कुल शानी वाली सूरत। मैं आंखें फाड़ कर उसे देखता रह गया। मेरा ख्याल था कि ये कहानी मेरे ही जहन में महफूज है, लेकिन औरतें भला कहाँ चूकती। उसे भी ये कहानी मालूम हो चुकी थी। ताहम मैंने उससे लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा, गोया तुम अब एक नई कहानी का सहारा लेकर मुझे परेशान करोगी। मेरी बीवी ज़ारो कतार रोने लगी। उसने कहा, आप मुझसे परेशान हो गए हैं? हाँ हो गया हूँ, बिल्कुल हो गया हूँ। पहले तुम्हारे बच्चे की ख्वाहिश ने तुम्हें दीवाना कर दिया और तुम सब कुछ करने पर आमादा हो गई थी, और अब इस नई कहानी से ना सिर्फ तुम खुद पागल हुई जा रही हो बल्कि मुझे भी पागल किए दे रही हो। मुझे बताओ मैं क्या करूं? मैं क्या कर सकता हूं? मुझे जवाब दो। खुदा के लिए कुछ कीजिए। उस काले जादू के माहिर से मिलिए। उससे कहिए कि अब हम क्या करें और ये सब क्या है। क्या ऐसा हो सकता है? हम तो काले जादू के चक्कर में ही फंस गए हैं। ठीक है, काले जादू के माहिर से मिलूंगा और इसके बाद कोई नया जादू करा के लाऊंगा। यही चाहती हो ना तुम?
تو پھر کیا ہوگا؟ شانی ہم سے نفرت کرتا رہے گا، ہمارا اکلوتا بچہ، اس کے سوا ہمارا اور ہے بھی کوئی نہیں۔ لیکن میری بیوی زارِ قطار روتی رہی، میرے پاس اس کے آنسوؤں کا کوئی حل نہیں تھا۔ وقت آگے بڑھتا گیا، شانی کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ اب وہ اپنی ماں کے پاس سوتا بھی نہیں تھا، اس کی بیزاری اور اس کی نفرت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ایک رات جب ہم اپنے بیڈ روم میں سو رہے تھے تو اچانک میری بیوی دہشت بھرے انداز میں چیخ پڑی۔ اس کی بھیانک چیخوں نے مجھے بھی دہشت کا شکار کر دیا۔ شانی اپنے الگ بستر پر سو رہا تھا، ان چیخوں نے اسے نہیں جگایا۔ بڑی مشکل سے میری بیوی معتدل ہوئی، خوف بھری نظروں سے شانی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ جاگ رہا ہے، میں قسم کھاتی ہوں یہ جاگ رہا ہے، مگر مکر کیے پڑا ہے۔ ابھی ابھی یہ میرے قریب تھا، مجھ پر جھکا ہوا تھا، اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ ہو رہی تھیں، یہ نفرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ یہ مجھے مار دے گا، یہ مجھے قتل کر دے گا۔ نہیں نہیں، دماغ خراب ہو گیا تمہارا، بتاؤ کیا کروں میں؟ اسے گھر سے نکال دوں؟ اور کیا کروں؟ نہیں، وہ میرا بچہ ہے، وہ میری اولاد ہے۔ میری بیوی سسکیاں لینے لگی۔ پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا، اور میاں صاحب مختصر یہ کہ میری بیوی آہستہ آہستہ ذہنی توازن کھونے لگی، اس پر دیوانگی کے دورے پڑنے لگے، اور آج یہ اس حال کو پہنچ گئی ہے کہ یہ اپنے بیٹے کو چاہتی بھی ہے اور اس سے دہشت زدہ بھی ہے۔ نہ جانے کیا کیا جتن کیے ہیں میں نے ڈاکٹروں کے پاس، بھلا اس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس کیا ہو سکتا تھا؟ میں تو اتنا بد نصیب ہوں کہ کسی کو اصلیت بھی نہیں بتا سکتا۔ کس سے کہوں کہ ایک بچے کو قتل کر کے ایک ماں کی گود اجاڑ کر ہم نے اپنی سونی گود بھری ہے۔ اس خانقاہ کی شہرت میں نے سنی ہے، بڑی دور سے آس لے کر آیا ہوں۔ خدا کے لیے ہماری مشکل کا حل بتا دیں، خدا کے لیے۔ میں دہشت سے گنگ تھا، اکرام پتھر بنا ہوا بیٹھا تھا۔ بڑی بھیانک دہشت ناک داستان تھی یہ۔ بچہ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ نانا نانی کے پاس چھوڑ آیا ہوں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ شیخ مغیث الدین۔ سب سے پہلے اپنا نام بدلو۔ میرے حلق سے غراہٹ نکلی اور وہ نہ سمجھنے والے انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ تن بدن میں آگ سی لگ رہی تھی، ساری برائیاں کر لی تھیں کم بختوں نے، اپنی ناپاک آرزو کے ہاتھوں نڈھال ہو کر ایمان بیچ دیا تھا، اور پھر بہتری کے خواہاں تھے۔ شدید گھن آ رہی تھی مجھے ان دونوں سے، وہ مشرک تھے۔ وہ بولا، سمجھا نہیں صاحب، تمہیں اس نام کو اپنائے رکھنے کا کوئی حق نہیں، یہ اسلامی نام ہے، متبرک اور قابل احترام۔ میں مسلمان ہوں، وہ بولا۔ شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے؟ غور نہیں کیا اپنے کالے کرتوتوں پر؟ عورت تو ناقص العقل ہوتی ہی ہے، تم لوگ اسے سنبھال نہیں سکتے، اس طرح کٹ پتلی بن جاتے ہو تم اس کے ہاتھوں۔ اس کائنات کا ہر ذرہ مالک کائنات کے اشارے سے جنبش کرتا ہے۔ تمہاری تقدیر میں اولاد ہوتی تو تمہیں ضرور ملتی، ہو سکتا ہے اس کا وقت مقرر کر دیا گیا ہو۔ تم نے اپنی ہوس کے ہاتھوں مغلوب ہو کر اس مردود کا سہارا لیا جسے شیطان کہا جاتا ہے۔ تمہاری عقل نے تمہیں ہوشیار نہ کیا کہ تم شیطانیت کی طرف بڑھ رہے ہو۔ تمہیں علم نہیں تھا کہ جادو کفر ہے۔ اس شیطان زادے نے تم سے کہا کہ تمہیں اولاد کے حصول کے لیے ایک انسانی جان کی قربانی دینا ہوگی، اس کو بجائے اس کے کہ تم سنسار کر دیتے، تم نے اسے اس عمل کا اختیار دے دیا۔ وہ شیطان زادی اپنی گود بھرنے کے لیے ایک اور ماں کی گود اجاڑنے پر آمادہ ہو گئی، اور تم اس کے ہم نوا بن گئے۔ تم نے اپنی آنکھوں سے اس ماں کو دیکھ لیا نا جو اولاد کو کھو جانے کے غم میں دماغی توازن کھو بیٹھی۔ قدرت تمہارے کالے کرتوت تمہارے سامنے لائی، مگر تم نے غور نہ کیا، اور اب تم اس عورت کے لیے بہتری چاہتے ہو۔ خدا کی قسم تم بے دین ہو، تمہارا اس پاک مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ رحم کرو صاحب، رحم۔ وہ بولا، تم مردود ہو، قابل سزا ہو، لیکن جزا و سزا کا مالک وہ ہے جس کے ہم بندے ہیں، تمہارا فیصلہ بھی وہی کرے گا۔ اب میں تم سے ایک درخواست کرتا ہوں۔ کیا میاں صاحب؟ یہ جگہ فوراً چھوڑ دو، یہ غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے، اس سے قبل کہ میں دوسروں کو اس بات پر آمادہ کروں۔ چلے جاؤ تم لوگ یہاں سے۔ میں تو بڑی آس لے کر آیا تھا صاحب، تمہاری بینائی چھن چکی ہے۔ وہ جنہوں نے تمہیں بے لوث محبت دی، تمہیں تمہارے برے وقت میں اپنایا، تمہارے لیے کچھ نہ رہے، اور وہ قابل نفرت عورت جس نے بالآخر تم سے تمہارا ایمان چھین لیا، تمہارے لیے آسمان ہو گئی۔ سنو، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اگر تمہیں لمحاتی عیش و عشرت مل گئے ہیں تو انہیں دھوکہ جانو، آنے والا وقت تم پر کٹھن ہے۔ 11 سال پورے ہو جانے دو، وہی بچہ جس کے لیے تم نے ایمان کھویا تمہاری موت کا سامان بنے گا، اسے تمہارے اعمال کی سزا کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ جاؤ، اس سے زیادہ تمہارے ساتھ رعایت نہیں کی جائے گی۔ ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے میاں صاحب،
खुदा की लानत हो तुम पर, मैंने नफरत से कहा। सुनिए तो सही मियाँ साहब, जो कुछ सुना दिया है तूने उससे ज्यादा ना सुना, तेरे हक में यही बेहतर है। इकराम, इन्हें यहाँ से निकाल दो। मैं उनके पास से उठकर वापस चल पड़ा। इकराम ने उन्हें वहां ना रहने दिया। उसी वक्त उन्हें खानका से दूर जाना पड़ा था। मुझ पर अजीब सी कैफियत तारी थी। दिल लरज रहा था इस कहानी पर। कैसे कैसे मरदूद इंसान होते हैं इस दुनिया में। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। इकराम मेरे पास आकर बैठ गया। हम दोनों खामोश थे, मगर ये खामोशी कायम ना रह सकी। शामी नजर आया था, उसके साथ नादिर हुसैन भी था, लिबास पहने हुए निहायत बेहतर हालत में। हम दोनों हैरत से उछलकर खड़े हो गए। बड़ा बाबा ठीक हो गया मसूद भाई, हमारा बड़ा बाबा ठीक हो गया। शामी खुशी से बोला। वाकई खुशी की बात है। नादिर हुसैन, कैसे हो तुम? मैं तो जैसा था वैसा ही हूँ, बस तुम लोगों की बीनाई मुतासिर हो गई है। नादिर हुसैन ने जवाब दिया तो मैं चौंक कर उसे देखने लगा। उसका लहजा बदला हुआ था, ताहम मैंने तबसरा नहीं किया और शामी से बोला, चलो शामी, तुम्हारी मेहनत बराबर हुई। हाँ नादिर हुसैन, अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं। तुमने वादा किया था कि एक मखसूस वक्त गुजारने के बाद हमें इजाज़त दे दोगे। मखसूस वक्त गुजारा कहाँ है? जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? अभी नहीं, अभी नहीं, उसने कहा। फिर शामी से बोला, जाओ तुम आराम करो, आराम का वक्त है। जी बड़े बाबा, शामी ने कहा। फिर मुझे हल्का सा इशारा किया और वहाँ से आगे बढ़ गया। मकसद ये था कि वो बातें तो ठीक कर रहा है, मगर मैं उसका ख्याल रखूं कहीं भाग ना जाए। शामी चला गया, मगर उसने और कोई बात नहीं की, खामोशी से गर्दन झुकाकर बैठ गया। मुझे खुद ही कहना पड़ा, शामी को भेजकर तुम कोई ख़ास बात कहना चाहते हो? हाँ रुको, अभी यहाँ रुको, कहीं से बुलावा तो नहीं आया है? कैसा बुलावा? मैंने उसे मशकूक नज़रों से देखकर कहा। बुलावे अलग अलग होते हैं, क्या समझे? सारे बुलावे अलग अलग होते हैं। तुम्हारा कोई बुलावा नहीं है, अभी रुको, न जाने किसे किसे तुम्हारी ज़रूरत पड़े। मैं खामोशी से उसे देखने लगा। नादिर हुसैन के बोलने का ये अंदाज नहीं था। वो तो मेरा बहुत एहतराम करता था, लेकिन उसका ये अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसके बाद उसने बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली। वो रुख बदल कर बैठ गया। इकराम ने थके थके लहजे में कहा, आप बैठेंगे मसूद भाई? नहीं, चलो आराम करें, मैंने उठते हुए कहा। हालांकि शामी मुझे इशारा करके गया था, लेकिन मैं रात भर चौकीदारी नहीं कर सकता था। फिर अब वो बेहतर भी नज़र आ रहा था, चुनाचे मैंने अपनी आरामगाह का रुख कर लिया। इकराम ने भी नादिर हुसैन के अंदाज को महसूस किया था। आरामगाह में आकर मैंने पुरख्याल लहजे में कहा, अगर आप कहें मसूद भाई तो मैं शामी को होशियार करके आऊँ। किस सिलसिले में? यही कि हम वहाँ से उठ गए हैं, अब वो खुद नादिर हुसैन का ख्याल रखे। मेरे ख्याल में अभी वो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों? उसके बात करने का अंदाज बता रहा है। वो आपसे इस लहजे में तो बात नहीं करता था। मैंने इकराम की बात का जवाब नहीं दिया, चुनाचे इकराम भी खामोश हो गया। हम दोनों आराम करने लेट गए थे, मगर नींद नहीं आ रही थी। शेख मुगीस और उसकी बीवी का ख्याल बार बार आ रहा था। दोनों बदबख्तों से मुझे शदीद करेहत महसूस हुई थी। ये ना मासूमियत थी ना लापरवाही। इतना बड़ा काम उन्होंने निहायत आसानी से कर डाला था। कुछ तो सोचना चाहिए था, मगर अंदाज़ा होता था कि शेख मुगीस पहले ही एक बद इंसान था। उसके खून में वफा थी ही नहीं। वो शकीउल कल्ब था, वरना अपने मोहसिनों के एहसान को कभी ना भूलता। जिन्होंने उसका मुस्तकबिल बनाया, उन्हें इसने तस्लीम ना किया। बाकी रही बात उसकी बीवी की, तो वो यकीनन बदकिरदार औरत थी और उससे वफा मुमकिन नहीं थी। जो कुछ मैंने शदीद करेहत के आलम में कहा था, उस पर मुझे कोई अफसोस नहीं था। रात काफ़ी गुजर गई। इकराम भी करवटें बदल रहा था। मैंने उसे पुकारा, नींद नहीं आ रही? हाँ भैया बाहर चलें? हाँ भैया बाहर चलें। मैं खुद यही सोच रहा था, बाहर खुली फिजा होगी। हम दोनों बाहर निकल आए। इबादत से बेहतर और क्या मशगला हो सकता था। वज़ू किया और आगे बढ़ गए। तभी नादिर हुसैन नजर आया। जहाँ छोड़ गए थे वहीं गर्दन झुकाए बैठा था। उसे मुखातिब करने को दिल ना चाहा और हम उससे कुछ फासले पर बैठ गए। उसकी पुश्त हमारी तरफ थी। मैंने उसकी तरफ से जहन हटा लिया और आंखें बंद कर ली। फिर मैंने दरूद शरीफ का विर्द किया। अभी पहली बार दरूद शरीफ खत्म किया था कि दफतन नादिर हुसैन की आवाज़ सुनाई दी। वो चीख मार कर खड़ा हो गया। मैं और इकराम चौंक कर उसे देखने लगे।